This one. Ghaziyat Jannat, you have a question. Did you see this question? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, ये ट्राई किया था कि नहीं किया था? सर लास्ट टाइम अभी नहीं किया। तो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था redox and moles, right? It was कि you have अच्छा, यहाँ पे there's a metallic salt which reacted with sodium sulfide. Sulfide is the one that's losing electrons, right? ये clear है? So that means it's undergoing oxidation, right? ठीक है, उसने कहा भाई the half equation for oxidation. So the metallic salt must be the one that would be gaining electrons, right? So the metallic salt M, जिसपे where the metal in the salt is +3, so that is the one that's gaining electrons. But we have no idea how many electrons it's gaining. And we have no idea what the final charge is going to be. But we know the metallic salt has a charge of +3. Ye clear? So this is the equation for reduction. Remember, oxidation, every time when you have oxidation, you have a reduction as well, right? Ye clear? जी सर। जी सर। अब बताओ कि what is the final charge on M? ठीक है, that's the question. पहले तो tell me what the moles of sulfite are. ये कितने electrons are this is? Sorry, moles of sulfite. 25 cm cube, 0.1 mole per dm cube. कितने हो गए? Moles क्या होते हैं? That's volume concentration times volume, right? तो what's the answer? कितने आ रहे सल्फाइड के moles? And I also need the moles for the metallic salt. अच्छा, क्या आ रहे हैं? जल्दी से बता दो ये. सर 5 × 10⁻³ वो metallic salt के? जी सर। अच्छा, you're getting 5 times 10 power -3 moles, right? उसके सल्फाइड के मोल्स कितने हैं? सर वो 2.5 × 10⁻⁻। अच्छा, remember sulfide is this many moles, ठीक है? One sulfide produces how many electrons? 2 electrons. So the amount of electrons would be double this, right? So 2.5 times 10 power -3 moles. So the amount of moles of electrons would be 5 times 10 power -3 moles. ठीक है, ये clear है? जी सर। अच्छा, remember redox में होता है कि the amount of electrons that are lost is exactly the same amount that should be gained. तो अगर वहां पे 5 times 10 power -3 moles of electrons are lost or produced, so over here, the amount of electrons that will be gained would be 5 times 10 power -3 moles. Clear है? जी कि सर। उससे तो 5 times 10 power -3 moles सॉल्ट थे, उन्होंने 5 times 10 power -3 moles इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो ये क्या रेशो बना है? होल नंबर रेशो 1:1 ही है ना? तो इसका मतलब है एक m जो है ना, उससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? एक. क्लियर है? बात समझ आइए? जी सर। जी सर। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये है 1. और वो जो फाइनल चार्ज होगा वो फिर +2 होगा. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी +2. And the answer is कि the final charge of the metal would be +2. समझ आया क्वेश्चन? जी सर। तो बस इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए. वो थे कितने? 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ तो 1:1 ही बना है. उसका मतलब है एक m एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था.
So अगला question, it's a similar question like redox. Remember electrons gain and loss, they have to be equal, ठीक है? As a lead 4 chloride will oxidize bromide to bromine, the lead 4 ions are reduced to Pb plus 2. So lead 4, yani Pb plus 4, will reduce bromide ions, oxidize bromide ions to bromine. And Pb plus 4 are reduced to Pb plus 2. So that will turn into Pb plus 2. अब जब तक make a balanced equation, तो the electrons gain and loss, they have to be equal, ठीक है? So Pb plus 4 is gaining 2 electrons. And Br minus 1 is losing 1 electron, but there are 2 Br minus 1, तो वो 2 electrons. तो equal है ना electrons gain and lost. Is this clear? जी सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है this is a balanced equation. Electron wise it's balanced. तो ये पहले तो lead 4 chloride के moles निकालो ना 6 point lead 4 के moles. Lead 4 chloride is PbCl4. मतलब एक PbCl4 में एक Pb plus 4 होता है ना, तो how many moles is this? 6.980. लेड मेरे ख्याल से 207 है और Cl4 जो है 142 होता है. 35.5 times 4. कितने मोल्स आए हैं? सर 0.02। तो 0 point. बस सेम मोल्स हो गए ना. PbCl4 and Pb plus 4 will have the same moles. One PbCl4 has one Pb plus 4. So 0.02 moles. अच्छा, what is he asking? What mass of bromine would be produced? It's 1:1. So the moles of bromine will be exactly the same. तो mr से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है उसकी mr? ब्रोमीन की होती है 79.9 प्लस 79.9, तो वो शायद 159.8 बनता है. अच्छा, क्या आ रही है? सर 3.19। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, अगला भी सिमिलर है कि 10 2 plus ions will reduce MnO4 to Mn2 plus. So 10 2 plus will reduce MnO4 minus 1 to क्या है, to Mn2 plus. And the Sn2 plus will oxidize to Sn4 plus. अब बताओ पहले तो वो balanced ratio कि electrons gain and loss, they have to be equal. Mn is +7. वो देख लो, +7 होगा. तो कितने electrons gained? 5 electrons, right? और Sn जो है ना, वो gains नहीं, lost 2 electrons. +2 to +4. MnO4 -1 में ना Mn +7 है. ये क्लियर है बात? जी सर। तो ये बताओ आगे कि किस तरह करेंगे गेन और लॉस इक्वल? सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से बैलेंस करने के लिए। तो बस 2Mn होगा और 5 Sn होगा और बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? और फिर बाकी निकालने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, SnCl2 यानी Sn2 प्लस के मोल्स पता लग जाएंगे. तो 9.5 MR भी दी हुई है, 190. तो क्या होगा?
सर SN 0.05। तो SN2+ के मोल्स कितने हैं? 0.05 निकालें उसे क्या है? Mn2+ के मोल्स निकालें वो क्या है? तो 5:2 है ना, तो 0.05:0.02 होगा। तो आंसर क्या होगा? 0.02 मोल्स। ये क्लियर है? जी सर। जी तो बस 0.02 है। और बस वही आंसर, फिर उसने वही कहा था, मोल्स ऑफ Mn2+। अच्छा, एक और रीडॉक्स का कि Tl+NO3-1 requires this much NH4VO3 to oxidize it to Tl3+, यानी Tl+NO3-1 जो है ना gets oxidized to Tl+3। यही मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इससे? मतलब Tl+ went to Tl+3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? गाजियत जन्नत क्या होगा? +1 से +3 गया ना। सर 2। सर 2 इलेक्ट्रॉन। बस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो कह रहे कि NH4VO3 जो है ना, और वनेडियम इज द ओनली एलिमेंट रिड्यूस्ड, यानी NH4VO3 है एंड वनेडियम इज द ओनली एलिमेंट रिड्यूस, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब ये नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और सर वही क्या है कि पहले तो वी की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ पे है क्या शुरू में? क्यों से क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वनेडियम इन द रिड्यूस फॉर्म, मतलब वी एंड में किस में कन्वर्ट हो गया? पहले तो वी की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है यहाँ पे? सर +5। +5 है। VO3-1 है ना, तो +5 है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये TlNO3-1 के मोल्स कितने हैं? 10 cm3, 0.3 मोल पर DM3। कितने मोल्स है? सर 3 × 10⁻³ और पता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा है? 2, तो रेशियो के मुताबिक कितने हो जाएंगे? 6 × 10⁻³ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो वो जो V है उसने फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, 6 × 10⁻³ मतलब वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फिर बैठ के गेन करेगा। ये इसके NH4VO3 के मोल्स कितने थे? ये उसने दिया हुआ है, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन। 20 × 0.1/1000। कितना है? 20। सर इसका 2 × 10⁻³ तो इनका रेशियो क्या बन रहा है? 1:3 बन रहा है। जी सर। यानी एक जो होगा ना वो कितने गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी V+5 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएगा? सर +2 बनेगा। तो आंसर +2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आए? ये 3 4, खास भाई आखिरी वाला, ये क्लियर है? जी सर। तो बस ये रीडॉक्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी है क्या समझे?
सारे कर लिए इसकी वर्कशीट को कंप्लीट करने की कोशिश करना, और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट वाले तो हमने कर लिए थे, कंबशन एनालिसिस और एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोग खुद ही कर लोगे। अच्छा, मैं मैथ प्रैक्टिस को भी हमने शुरू में कर लिया था, और ये रीडॉक्स रिएक्शंस भी हो गए थे, लिमिटिंग रिएक्शन, एक्सेस रिएक्शन, ये भी हमने शुरू में किए थे, इसके कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस सारे ट्राई करना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना जितने भी कर सकते हो। वैसे तो हमने मेन मेन चीजें, कंबशन एनालिसिस, जो जो ये रीडॉक्स टाइप जो थोड़े से डिफरेंट है, वो तो हमने सारे कवर कर लिए। क्लियर है सारा? जी सर। तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें। सही है? ठीक है, अगला वाला स्टार्ट कर लें। जी सर। अच्छा, एक सेकंड।